So, our chapter is going on equality in political theory book, and in this chapter, right now we are discussing about the topic 3.2, what is equality. In previous lecture also we have read about the importance, definition of equality and definition of equality and where we see the equality and what type of inequality is present in the society and what type of inequality is uh, acceptable or what type of inequality is unacceptable in the society. इसी संदर्भ में, इसी कॉन्टेक्स्ट में हम आज और आगे इसमें नेक्स्ट पैरा हम पढ़ने जा रहे हैं. The question that arise in which distinction and differences are acceptable and which are not. It means some inequalities, these are necessary in a society to create a difference between the people, to create a difference between the status of the people and to maintain the society. And some equality, some type of inequalities, these are not acceptable in the society. What type of, आगे हम पढ़ने जा रहे हैं. The question that arise in which distinction and differences are acceptable and which are not. When people are treated differently just because they are born in a particular religion or race or caste or gender, we regard it as an unacceptable form of inequality. It means when anyone discriminated the others on the basis of his or her caste, religion, gender, so that type of equality is not acceptable in the society. Why? Because God made us equal. It is considered in our Dharma Shastras and Dharma Sutras and other Buddhist text and other texts. Mean to say, from ancient time, many thinkers, many political thinkers, and many foreign political thinkers, philosophers like Socrates, like Rousseau, they told us that we all are born equal. So why such type of discrimination here? So this type of inequality, which is based on caste, gender, religion, that is unacceptable, because people, they are aware, they want equality and they don't want to discriminate others or such type of discrimination they don't want with them on the basis of caste, gender and religion. But human beings may pursue different ambitions and goals and not all may be equally successful. Exactly. Mean to say, suppose in a class every student wants to become IAS officer in future, but उनके गोल में, उनकी एम्बिशंस में कहीं कोई कमी नहीं रहती, लेकिन उनके जो प्रयास होते हैं, जो एफर्ट्स होते हैं उस गोल को पाने के लिए, वो डिफरेंट हो सकते हैं और उनके उसमें जो वेरिएशन आता है, कोई कम मेहनत करता है, कोई ज़्यादा मेहनत करता है, तो उसी का रिज़ल्ट उनकी सक्सेस के ऊपर पड़ता है कि वो कितना सक्सेसफुल हो पाते हैं. तो सभी लोग जो है सोसाइटी में इक्वली नहीं हैं, अलग अलग एम्बिशंस हैं लोगों की, अलग अलग गोल्स हैं और अलग अलग तरीके से वो इसके लिए प्रयास भी करते हैं. तो ये भी एक टाइप की इनइक्वालिटी है, बट दिस टाइप ऑफ इनइक्वालिटी इज एक्सेप्टेबल इन द सोसाइटी so long as they are able to develop the best in themselves. We would not feel that equality has been undermined. In that case, हम कभी नहीं कह सकते कि हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है. वाई? बिकॉज ये हमारे एफर्ट्स हैं जो हमको या तो सक्सेस की तरफ ले जा रहे हैं या फिर हमको फेलियर करार दे रहे हैं. Some may become
good musician, while others may not be equally outstanding. Some become famous scientists, while others other more noted for their hard work and consciousness. So ये अलग अलग एबिलिटी, लोगों की क्षमता, लोगों का हार्ड वर्क डिसाइड करता है कि उनका समाज में अलग अलग स्टेटस होता है, और ये भी एक प्रकार की इनइक्वालिटी है जिसके लिए हम समाज को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते. द कमिटमेंट इज टू आइडियल ऑफ इक्वलिटी डज नॉट इम्प्लाई द एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ डिफरेंसेस. एग्जैक्टली, गवर्नमेंट सभी को एलिमिनेट नहीं कर सकती. तो कुछ डिफरेंसेस को हम सभी फॉर्म्स ऑफ डिफरेंसेस, देखिए इनइक्वालिटी का मतलब होता है रिच और पुअर के बीच में भी गैप होना. अब हमें कंडीशन ये देखनी है, जब हम इक्वालिटी के कॉन्सेप्ट को डीपली देखते हैं तो हमें कंडीशन ये देखनी है कि वो किस वजह से उस स्टेटस पे है. अगर जो इनइक्वालिटी का कारण है, अगर गवर्नमेंट है या समाज है या दूसरे लोग हैं, तो वो अनएक्सेप्टेबल होती है. लेकिन अगर उस इनइक्वालिटी का कारण हम खुद हैं तो वो एक्सेप्टेबल होती है सोसाइटी में. हर कोई इसको एक्सेप्ट करता है क्योंकि वो इस चीज़ को मानता है कि मैंने ज़्यादा मेहनत की इसलिए मैं आईएएस बन गया. उसने कम मेहनत की, उसने ज़्यादा मेहनत की तो वो आईएएस बन गया, और मैंने कम मेहनत की तो वह पीछे रह गया. तो ये जो इनइक्वालिटी है ये एक्सेप्टेबल होती है सोसाइटी के लिए. द कमिटमेंट इज टू आइडियल ऑफ इक्वलिटी डज नॉट इम्प्लाई द एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ डिफरेंसेस. इट मेयरली सजेस्ट दैट द ट्रीटमेंट वी रिसीव and the opportunities we enjoy must not be predetermined by birth or social circumstances. Equality के which type of equality we want, कि ऐसी इक्वलिटी होनी चाहिए या ऐसी इनइक्वालिटी नहीं होनी चाहिए, जो अदर फॉर्म में हम कह सकते हैं ऐसी इनइक्वालिटी समाज में नहीं होनी चाहिए जो कि बर्थ के बेस पे, जेंडर के बेस पे, कास्ट के बेस पे हमारे साथ जो क्रिएट होती है, वो इनइक्वालिटी नहीं होनी चाहिए, ये कहा जा रहा है इसमें. ठीक है. और दूसरा, सपोज़ हम अगर अनटचेबिलिटी को फॉलो करते हैं और अनटचेबिलिटी को फॉलो करके समाज अगर हायर क्लास और लोअर क्लास को अलग अलग उसमें डिस्क्रिमिनेशन करता है, तो इस टाइप की इक्वलिटी भी समाज में एक्सेप्टेबल नहीं होती. क्योंकि अगर हम इक्वलिटी को एक सिद्धांत मानते हैं, एक प्रिंसिपल मानते हैं, तो इक्वलिटी के ऊपर जो सबसे पहला चीज़, जो पहली बात कही जाती है वो ये है कि ऑल द मैन्स दे आर बॉर्न इक्वल. तो कास्ट बेस, बर्थ बेस, जितनी भी इनइक्वालिटीज़ हैं वहीं पे ख़त्म हो जाती हैं अगर हम इक्वलिटी को फॉलो कर रहे हैं. देन तो इक्वलिटी को फॉलो करते समय हमें किस टाइप की इनइक्वालिटी को क्रिएट नहीं करना है वो देखना है. ओके. नाउ इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, जिसको जैसी अपॉर्चुनिटी मिलती है, जो जैसे ग्रो करता है, वैसे ही उसका डेवलपमेंट होता है. द कंसेप्ट ऑफ इक्वलिटी implies that all people as human beings are entitled to the same rights and opportunity to develop their skills and talents and to pursue their goals and ambitions. We all know that we are living in a democratic country, and in democratic country we all have the rights to grow. We all have the rights and all the opportunities. No discrimination is there according to our constitution. बट इनइक्वलिटी क्या चीज़ क्रिएट करता है? हमारे गोल, हमारे एम्बिशंस और हमारा हार्ड वर्क, उसके लिए जो भी हमने एफर्ट्स किए हैं. दिस मीन्स दैट इन अ सोसाइटी पीपल में डिफर विद रिगार्ड टू देयर चॉइस एंड preferences. They may also have been
they may also have different talents and skills, which results in some being more successful in their chosen careers than others. But just because only some became cricketers or successful lawyers, it does not follow that the society should be considered unequal. क्योंकि उनके अपने अपने गोल हैं, एम्बिशंस हैं, उनके अपने अपने एफर्ट्स हैं. तो इसके लिए हम किसी ने कोई अदर टाइप का ऑक्यूपेशन चूज़ करता है, कोई अदर टाइप का ऑक्यूपेशन चूज़ करता है, तो हम उसके लिए उनके बीच में इनइक्वालिटी को नहीं ला सकते, उनको अनइक्वल नहीं मान सकते. इन अदर वर्ड्स, it is not the lack of equality of status or wealth or privilege that is significant, but the inequalities in people's access to such basic goods as education, health care, safe housing that make for an unequal and unjust society. Suppose कुछ लोगों के पास समाज के रिसोर्सेज नहीं हैं, उनके बच्चों को पढ़ाने लिखा, पॉवर्टी है उनके एरिया में, वो अपने बच्चों को पढ़ा लिखा नहीं सकते. तो इन दैट केस जो ये इनइक्वालिटी क्रिएट होगी आगे जाके उनके बच्चे जो हैं वो पुअर ही रह जाएंगे, और जो डेवलप एरियाज़ हैं उनमें से अच्छे बच्चे जो हैं वो अच्छी पोस्ट पर निकलेंगे. तो इन दैट केस ये जो इनइक्वालिटी क्रिएट हो रही है, इनइक्वालिटी जो क्रिएट हो रही है, यही आगे जाकर एक अनजस्ट सोसाइटी बनाती है, और लोगों में पॉलिटिकल और ये जो सोशल और इकोनॉमिक ये जो इनइक्वालिटीज़ है ना, ये इन्हीं से क्रिएट होती हैं. तो रिसोर्सेज का, अपॉर्चुनिटीज़ का होना, समाज में सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी का होना, इक्वल रिसोर्सेज का होना ज़रूरी है. इसी कारण एक जस्ट सोसाइटी, एक न्यायपूर्ण समाज का निर्माण हो पाता है.